सर, मैं पूछना चाहूंगा कि सर आप भी अपने कॉलेज टाइम पे लेक्चर्स बंक किया करते थे क्या, या फिर शुरू से ही एकदम डिसिप्लिन गाय प्रिंसिपल टाइप मेंटेलिटी के साथ क्लास करना? Yeah, that is a very interesting question. Hello everyone, welcome to the podcast series of Happy Singh, the man, the myth. Our first episode is with our Honorable Vice Chancellor sir. So let's go. Hi, I am Happy Singh. You are listening to Literally Unscripted. So, our today's episode is truly appreciable. Johar sir, welcome to Yeah, our show. thank you. So, let's introduce the AGOG of our university, our Honorable Vice Chancellor, Professor C. Jagannathan. Hello. हेलो सर। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका ये ऑनरेबल वाइस चांसलर बनने का जर्नी था, ये कैसा रहा? आपने सर ये कब डिसाइड किया कि एजुकेशन ही आपका पैशन बनेगा? I joined in this Sarla Birla University on 10th of January 2025. Before that, I was in BIT Misra and I was working as a professor and head and dean of research under the Department of Remote Sensing. So my professional career started in 1993. So way back, okay, for the past 32 years, I have been working in the professional domain called geoinformatics. Geoinformatics domain deals with extracting information from the Earth's surface using satellite data as well as model the geographic processes. That is my area of interest. And I never really planned that I should become a vice chancellor. It happened. It happened over the time. But the initial kind of very momentous occasion related to my orientation towards teaching happened when I was in 10th standard. So in my school, I had few friends, and one fine day they all turned out to be in my home. That they were all telling, "So Jagan, you have to teach me this." So then I realized, okay, they are having some belief in me that I can make them understand. So that was my initial journey towards teaching. And then when I went to college, so I had few close friends. And interestingly, one of my friends said, he gave me his books. He said, Jagan, I'm not going to study. So you have to make me learn. So I have to teach him. So in order to teach him, I started studying. So that is how I realized that, okay, people are having hope on me that I can teach better. So this is how I got into this. Then, fortunately, when I joined ISRO in 1993, so that campus was called Indian Institute of Remote Sensing. That is the educational wing. So I joined that campus in 1993. So I have been in that, fortunately, in that educational domain since then. So you are trying to say you have a God gifted talent that you can easy understandable to anyone. Maybe. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप एक स्टूडेंट के फ्रेंड बन जाएं, अगर आप मेरे ही फ्रेंड बन जाएं, तो पहला ऐसा क्या राय देना चाहेंगे हमें कि एक टाइम के बाद क्या मैं भी वहां पे बैठ सकता हूँ? Yes, absolutely. देखिए, you see, when I was in a college, so I was a gold medalist in BSc Physics. I was a topper. I have completed. Then one of my friend asked me, right, one of my senior rather, he asked me, where you will go? What do you want to become? I said, I don't know. So मुझे बिल्कुल नहीं पता था मैं कहाँ जाऊंगा फ्यूचर में. So इसका मतलब ये है, मतलब I will advise any young person that don't worry about your future.
Nobody has seen the future. Yes. And don't worry about your past. Whatever you are having at present in your hand, you give your best shot. That is what my advice would be. Take every day as a fresh, and honestly, you give your से best. एक बात याद आया सर, आपका हमें मैच देखा स्पोर्ट्स, सर काफी बढ़िया खेलते हो सर। इस एज में भी इतना एनर्जी, आप सर आपका डाइट जानना चाहूंगा कि सर आपके जितना एनर्जी तो हमारे पास भी नहीं है। 7th फ्लोर की सीढ़ी चढ़ते रहते एकदम थक जाते हैं। You see, again, it is a mindset. यस सर। Fortunately, my father was an athletic champion, so sports मेरा खून में है। पैशन। सो स्कूल से ही हम लोग मतलब खेलना शुरू कर दिया। सो पढ़ाई से ज्यादा मैंने गेम खेला। सो पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई किया, खेलने के टाइम में खेल किया। सुबह हम लोग स्कूल के टाइम में हम लोग 5 बजे उठ जाते थे, फिर लोग रेडी होके 5:30 बजे तक 6 बजे तक ग्राउंड में पहुंच जाते थे, 6 से 8 बजे तक गेम खेलते थे, फिर घर आते थे, नहा के खा के फिर 9 बजे तक स्कूल पहुंच जाते थे, फिर शाम को खेलते थे, 4 से 6 बजे तक शाम को खेलते थे। सो एक स्पोर्ट्स हो सकता है, उन्होंने मतलब मेरे को मतलब स्पोर्ट्स ने मेरे को एक्टिव रखा है। एंड देन स्पोर्ट्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू लूज अ गेम, यू विन अ गेम, बट यू कीप प्लेइंग and you get to know many friends. That's an impression. And then you are physically you are fit. Yes. बट एक बार नौकरी में ज्वाइन करने के बाद भी इसरो में मैंने बैडमिंटन वगैरह क्रिकेट वगैरह बहुत खेला, बट उसके बाद में थोड़ा खेलना कम हो जाता है वो द टाइम। बट फिजिकली वन नीड टू बी फिट, सो आई डू लॉट ऑफ वॉकिंग और मतलब क्लाइंबिंग द स्टेयर्स एंड देन डाइट आल्सो। सो आई टेक मेजर डाइट, आई डोंट take snacks in between, very less. So I avoid snacking and I believe in major 3-time major food. And then one of my ISRO senior, he advised me, he followed one therapy called water therapy. So he is Mr. Raju. So he is a marathon runner. Now he is nearly 65. Even today, every day he runs 25 kilometers, runs marathon. So he is much fitter than me. So he told me, so in the morning in your empty stomach, drink 1 liter of water, maximum water. Every day. Every day. It cleanses your system. And then once your system is clean, take healthy food, I think you will be all right. Yes. That's a discipline. And Yeah. one more important thing, okay, especially to the youngsters. Yes. So you have to do meditation and breathing technique. So with the proper food, with the proper meditation to remove your stress, and with the proper breathing technique, you can follow a very healthy life. Let's begin with third question. सर हमारे जेनजी बच्चों में, हमारे टाइम के जेनजी बच्चों में और आपके टाइम के बच्चों में क्या डिफरेंस है? मान का फर्क है, क्योंकि हम लोगों के टाइम में एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं था, सिर्फ टीवी था या न्यूज़पेपर था या लाइब्रेरी था। हाँ, तमिलनाडु में एक और एंटरटेनमेंट है, सिनेमा। सिनेमा इज अ काइंड ऑफ रिलीजन इन तमिलनाडु। So whenever there is a movie, we feel so happy and we go and watch movie. That is still my passion. I watch a lot of movies. I get a lot of inspiration from movies. And yeah, so where were we, by the way? What were we discussing? I just got into We are discussing about Gen the Z. time period. Yes. difference in between the youngsters and And your Gen Z. generation, my generation. They are very forward looking and they can change the country. क्योंकि हम लोग एक पुराना सोच के साथ अपने आप को लिमिट करके हम जिंदगी जिए हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ नहीं था। आपके पास अभी सब कुछ है। इस सब कुछ के साथ कैसे आगे बढ़ना है, ये भी एक नया तरीके से देखना पड़ेगा। हम नहीं देख पाते हैं, आप लोग मिलके ही आपको इसको सोचना पड़ेगा। मतलब इंडिविजुअली आप देखा जाए, आप लोग एक एक बूंद का पानी है, जब कलेक्टिवली एक पानी को रखें, इट हैज मोर पावर। जब आप लोग सब यूनिवर्सिटी से बाहर जाओगे, अपने अपने पैर में तो खड़ा होगे, अपना फैमिली को संभाल, बट देश का भविष्य भी संभाल रहे हो। इसलिए हर बच्चा
यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आने से सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है, मैं यूनिवर्सिटी क्यों जा रहा हूँ? मैं सिर्फ टाइम पास के लिए जा रहा हूँ? मेरे मम्मी पापा के लिए, उनके पास पैसा है? मैं सिर्फ डिग्री मेरे को चाहिए। एक कुछ बच्चे ऐसा भी हो सकता है, कुछ बच्चे बोलेगा नहीं, मेरा मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है, मैं पढ़ाई करके मैं अपने पैर में खड़ा होऊंगा, मेरे मम्मी पापा को एक हैप्पी लाइफ दूंगा। ये भी एक दो एक्सट्रीम है, राइट? बट दो एक्सट्रीम में रहने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, मेजॉरिटी बीच वाले, मिडिल क्लास ही है मेजॉरिटी। मैं इन बच्चे को मेन मैसेज ये दूंगा दैट एजुकेशन इज द ओनली वेपन, इसमें आप अपना जिंदगी बदल सकते हो। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं। जब मैं बीएससी पढ़ रहा था, मेरे पापा के पास नौकरी नहीं था। मेरे पास बीएससी के बाद में एप्लीकेशन डालने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, मेरा टाउन से बाहर निकालने के लिए पैसा नहीं था। आज के दिन में मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मतलब प्योर एंड प्योर एजुकेशन की वजह से। उसके अंदर इतना ताकत है, आपको कहीं दूर तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, आपको पढ़ाई में मन नहीं है, अभी क्या करें? आप अपना स्किल को बढ़ाइएगा। इस कैंपस में कितनी अपॉर्चुनिटी है। आपको योगा में आगे बढ़ाना है, हमारे पास योगा डिपार्टमेंट है, उसमें जाइएगा। आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, पेंटिंग में जाइए, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट पेंटिंग है। म्यूजिक में इंटरेस्ट है, हमारे पास फाइन आर्ट्स में म्यूजिक सिंगिंग है। और आपका लैंग्वेज में बोलने में इंटरेस्ट है, हमारे पास लिटरेरी सोसाइटी है। कहीं ना कहीं अपने आप को एक ग्रुप के साथ अटैच करके अपना स्किल को बढ़ाइए। डिग्री तो आपको मिल जाएगा, बट स्किल आपका जिंदगी भर रहेगा। जब वो यूनिवर्सिटी आएंगे, जब यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे, आप अपने आप को पूछेंगे मैंने आज क्या नया सीखा। ये आपके मन में आएगा, आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। नहीं, मैं आ रहा हूँ सिर्फ डिग्री के लिए आ रहा हूँ, दोस्त से मिलने आ रहा हूँ, देन आप लंबा दूर नहीं जा पाएंगे। कैंपस में स्पोर्ट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ड्रोन लैब इज ओपन फॉर एवरीवन, जा सकते हैं, कोई भी लैब में आप जा सकते हैं। मैंने आपका फ्रीडम देता हूँ, कोई भी लैब में चले जाइए। आप उधर के आदमी लैब इंचार्ज से पूछिएगा, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरे को बताइए, मेरा लाइफ में रिलेटेड कुछ यहाँ पर हो रहा है। आप फ्रीली इंटरेक्ट करिएगा। ये यूनिवर्सिटी आपका है। इतनी बड़ा यूनिवर्सिटी हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया। एवरीथिंग इज सब्सिडाइज्ड। आप जाके देखिएगा मेनी इंस्टीट्यूशन, उधर का कंप्यूटर साइंस का फी देखिएगा, लॉ का फी देखिएगा, इट इज ह्यूज, इज वेरी वेरी डिफरेंट। यहाँ पर सब कुछ सब्सिडाइज्ड में है। इस अपॉर्चुनिटी आपका कभी नहीं है, यंग लाइफ का अपॉर्चुनिटी। सिर्फ आप 30 इयर्स के अंदर ही आपका पूरे के पूरा ताकत को बढ़ा सकते हैं। एक पेड़ बड़ा होता है, एक बड़ा होने का एक टाइम होता है। उस समय में वो कितना अपने अंदर का न्यूट्रिशन लेगा, सनलाइट लेगा, हवा पानी लेगा, उतना वो बड़ा होगा। एक बार बड़ा हो जाए, उसमें चिड़िया आएंगे, एनिमल्स आएंगे, सब लोग नीचे रेस्ट करेंगे। अपने आप को एक बड़ा वृक्ष के जैसा बनाना है कॉलेज टाइम में। वही एक स्टूडेंट का लाइफ का एम होना चाहिए। फ्यूचर में इनकेस विजन कुछ जो कि आगे जाके ऐसा कुछ इनिशिएटिव आप ला रहे हैं जो कि फ्यूचर में हमारे स्टूडेंट को कुछ हेल्प करे? राइट, जैसे यूनिवर्सिटी इज अ बिग एंटिटी। कोई भी चीज हम आज सोचेंगे, हो सकता है उसका इम्पैक्ट कब निकलेगा, मतलब इमीडिएटली भी आ सकता है, लॉन्ग टर्म में भी आ सकता है। आप लोग देख रहे होंगे, ओके, एक ड्रोन एंड रोबोटिक्स लैब एस्टैब्लिश किया। आते ही मैंने उसका एस्टैब्लिश किया कि देयर इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हम लोग वर्कशॉप भी फ्रीली कंडक्ट किया स्टूडेंट्स के लिए। दैट इज वन, बिकॉज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नॉलेज हर बच्चे को होना चाहिए। दैट इज वन इनिशिएटिव। सेकेंड, स्पोर्ट्स में सब बच्चा फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। वो भी आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारा स्पोर्ट्स इनिशिएटिव गेम्स वगैरह हो रहा है। हमारे बच्चे आईआईटी खड़गपुर में जाके जीत के आए हैं। हमारे बच्चे नेशनल ताइक्वांडो चैंपियंस भी हैं, योगा चैंपियंस है। आई एम वेरी हैप्पी दैट हमारे सरला यूनिवर्सिटी के बच्चे नेशनल लेवल चैंपियंस यहाँ पर हैं। एंड देन रिसर्च के प्रति भी हम लोगों ने बहुत सारा न्यू इनिशिएटिव लिया है। फॉर एग्जाम्पल, झारखंड में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ने एक एकेडमी खोला है, झारखंड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एजेंसी। उस एजेंसी का
नॉलेज पार्टनर सरला बिरला यूनिवर्सिटी को उन्होंने चूज किया। एंड अभी हम इस यूनिवर्सिटी से पूरा झारखंड के कितना कॉलेज का फैकल्टी है उनको हम ट्रेनिंग देंगे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। गवर्नमेंट ने हमको रिकॉग्नाइज किया, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। एमओयू भी हम लोग फर्स्ट टाइम सरला बिरला यूनिवर्सिटी के बच्चे लोग थाईलैंड गए हैं इस समर में, फैकल्टी भी थाईलैंड गए हैं। थाईलैंड यूनिवर्सिटी एक एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एशिया में वेरी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। हमने एमओयू किया, हमारा यूनिवर्सिटी कोई भी डिपार्टमेंट का है वो थाईलैंड जा सकते हैं। 80,000 रुपीज में आपको 2 वीक्स का इंक्लूडिंग ट्रैवल, अकोमोडेशन, फूड, everything they are providing. So there is an opportunity for all the students. Whoever is interested, please come and let me know. This December we are having one plan, and next summer we are having plan. Interested students, I invite, and you also pass on this message. Okay. Yes. And then for the future where we should go. See, there are around 1,400 universities in India. 40,000 plus colleges in India. So all of them are doing teaching. Okay, many are doing research. So we have a national institutional ranking framework, NARF. Top 100 universities are having a lot of new things happening. I would like to see SBU in that top 100. That would be my interest. And I would also like to bring foreign experts to our university so that the students who are left out in Jharkhand, they should feel empowered. Yes, in Ranchi, I no need to go to Bangalore, Hyderabad, anywhere. Within Ranchi, in my hometown, I will get a quality education and of international standard. So that would be our ultimate aim. And as a personally, I have set a target that we should create 100 startups in coming few years, 100 startup company. So tomorrow we are having national as entrepreneurship and startup summit. Tomorrow we have. So these are the initiative we are aiming to, and to make our students and our university a vibrant campus. I also would like to see the alumni from SBU, they will be the future leaders in various companies and various scientific institutions, and also in various international universities. That would be my wish. Great initiative, sir. Thank you. Yes, sir. सर सच बोले तो थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। क्यों? सर लग रहा है कि मतलब पॉडकास्ट हो रहा है लेकिन वाइवा वाला फील आ रहा है। वाइवा वाला आप मेरे को ले रहे हो? लेकिन फील मुझे आ रहा है सर। तो इसी के साथ थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए हम लोग एक गेम खेलते हैं। ओके। रैपिड फायर राउंड। ओके सर, जिसमें मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। ओके। आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, जो भी आंसर आपके दिमाग में पहले आएगा आपको वो बताना है सर। ओके। सर, टी और कॉफी? टी। टी। मॉर्निंग मीटिंग और इवनिंग मीटिंग सर? मॉर्निंग मीटिंग। मॉर्निंग मीटिंग। मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज गिवन बाय स्टूडेंट्स? दे से ऑलवेज सॉरी एंड देन भूल गया। ओके। ओके सर। वन वर्ड फॉर टुडेज यूथ? वन वर्ड, बिंदास। बिंदास रहना है। बिंदास रहना है, खुशी रहना है, एंड देन देश के लिए थोड़ा सा सोच लें। इंटरेक्ट विद द टीचर। तो इसलिए मतलब हम लोग टीचर को भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया, आप सिर्फ बोर्ड को देख के नहीं पढ़ाना है। आप बच्चे को अंदर का एक क्यूरियासिटी को इंस्पायर करना है, बच्चे को सब्जेक्ट के प्रति प्यार लेके आना है। ये भी हमारा मैसेज है। टीचर के ऊपर भी प्रेशर है बच्चे को मतलब नॉलेजेबल बनाना। सो ये सब मिलजुल के होगा। ये शुरुआत है, आप देखेंगे इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। इस बार मैं वारंटी देता हूं कि इस बार 98% बच्चे पास हो जाएंगे, क्योंकि मुझे फीडबैक आ रहा है, अलग अलग एंगल से हम लेते हैं। पास होने का संभावना इस बार बहुत बढ़ गया है, इसलिए पॉजिटिवली इसको लीजिए। ये तो बड़ी अच्छी खबर है सर हमारे लिए। चलिए बढ़िया है सर। सर,
मैं पूछना चाहूंगा कि सर आप भी अपने कॉलेज टाइम पे लेक्चर्स बंक किया करते थे क्या, या फिर शुरू से ही एकदम डिसिप्लिन गाय प्रिंसिपल टाइप मेंटेलिटी के साथ क्लास करना? Yeah, that is a very interesting question. Thank you. You see, मतलब मुझे कितना याद है मेरे कॉलेज टाइम में, मतलब मेजॉरिटी हम लोग क्लास अटेंड करते थे. ओके, कभी कभी स्कूल में मतलब कॉलेज में स्ट्राइक होता था, उससे हमको छुट्टी मिल जाता है. ओके, सो वो बहुत ही मतलब हैप्पी टाइम होता है कि हम लोग सब फ्रेंड्स लोग मिलके चलो पार्क चलो, खेलो क्रिकेट, खेलो कुछ भी खेलो. एक इवेंट मेरे को अभी भी याद है. ठीक है, आई थिंक वी वर इन बीएससी फिजिक्स, आफ्टरनून की टाइम था. ओके, उस टाइम में नया नया रोजा मूवी रिलीज हुआ था. ओके, सो लंच के बाद हम लोग ऐसे ही कोई स्टूडेंट बोला चलो यार हम लोग सब मूवी चलते हैं. सो मूवी चलते हैं मतलब क्लासेस है, क्या करें, बोले चलो एक दिन तो कट मारते हैं, चलो मूवी चलते हैं. चलो हम लोग सब साइकिल में निकल पड़े. जैसे ही हम कॉलेज का गेट से बाहर आए, कौन सी टीचर का क्लास है वो सामने से आ रहे थे हम लोगों का. दैट वाज अ वेरी हिलेरियस मतलब मोमेंट. तो हमको देख के जा रहे, हम लोग सब बाहर जा रहे. सो कभी रेयरली हम लोग कट करते थे सर. कभी कभी. सर आपको क्या लगता है कि आज के बच्चे थोड़े ओवर स्मार्ट हो गए हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे आपको मतलब बहाने लाके देते हैं जैसे उनके स्क्रिप्ट बॉलीवुड के राइटर ने लिखे हो? राइट, बहुत ही आज के बच्चे बहुत स्मार्ट है, वेरी स्मार्ट, और किसी को भी उल्लू बना सकते हैं. सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट. क्योंकि कोई चीज हेल्प चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं वो लोग. बहुत सारा मतलब या दे आर वेरी स्मार्ट. आज का पॉडकास्ट नॉलेज तो मिला ही, एक कैंडिड और एक ह्यूमन साइड भी देखने को मिला हमें. सो अगले पॉडकास्ट में सर कैंटीन में मिलते हैं कॉफी के साथ. श्योर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. ठीक है. और दोस्तों ये था वीसी टॉक्स, दिल से वाइस चांसलर.